हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं नम्र। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 के सप्लीमेंट्री इंग्लिश रीडर बुक यानी कि स्नैपशॉट के फर्स्ट चैप्टर जो है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जिसकी ऑथर है विलियम सरोयान। तो आगे बढ़ते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर अर्मेनियन बॉयज हु बिलोंग्स टू अ ट्राइब हुज हॉलमार्क आर्ट ट्रस्ट एंड ऑनेस्ट। यानी कहानी दो आदिवासी अमेरियन लड़कों की है जो गारोग्लानियन नामक जनजाति के हैं। गरीब होने के बावजूद भी उन्होंने कभी कुछ नहीं चुराया। उनकी जनजाति विश्वास और ईमानदारी के लिए जाना जाता है। One day back, there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and the life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, and who was considered crazy by everybody who knew him except me. यहाँ पर दोस्तों स्टोरी टेलर का नाम आरम है, जो कि एक 9 साल का लड़का है। कहानी के पूरे इंसिडेंट उसके और उसके कज़न ब्रदर मुराद पर बेस्ड हैं, जो कि 13 साल का है। वह साहसी था, लेकिन हर कोई जो उसे जानता था वह उसे सनकी समझता था। मेरे अलावा हम दोनों घुड़सवारी बहुत पसंद है, लेकिन गरीब हैं तो वह घोड़ा नहीं खरीद सकते थे। One day he came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. Aram, he said. I jumped out of bed and looked out of the window. I couldn't believe what I saw. It wasn't morning yet, but it was a summer and with a daybreak. Not many minutes around the corner of the world, it was a light enough for me to know I wasn't dreaming. कहानी तब शुरू होती है जब एक गर्मियों की सुबह मुराद आरम के घर आकर उसके कमरे की खिड़की पर दस्तक देकर जगाता है। आरम जागकर खिड़की से बाहर देखता है तो वह अपने चचेरे भाई मुराद को सुंदर सफ़ेद घोड़े पर देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, मतलब शॉक्ड हो जाता है। वह तब मुराद कहता है कि तुम सपना नहीं देख रहे हो, ये सच का घोड़ा है। अगर तुम इस पे घूमना चाहते हो तो जल्दी करो। चलिए अब दूसरे पेज पर बढ़ते हैं। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first logging had been logging to ride. This was the wonderful part. In the second place, we were poor. तरफ मेरी हमेशा से चाह और ख्वाहिश थी कि मैं घोड़े पर बैठूं और उस पर घूमूं। यह सबसे खूबसूरत एहसास था। वहीं लेकिन दूसरी तरफ हम गरीब थे। This was the part that wouldn't permit me to believe that what I saw. We were poor, we had no money, our whole tribe was poverty-stricken, और हमारी गर्गोलियन ट्राइब्स यानी कि जनजाति हमारी सतत और ईमानदारी के लिए जानी जाती है। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. Not even the old man of the family. Most important of all, though, we were famous for our honesty. We had been famous for our honesty for something like 11th century, even when we had been the wealthiest family in what we liked to think was the world. We were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse I had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family. As sleep of awake, because I knew of my cousin's Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it. I refused to believe he had stolen it. बस यही एक चीज़ मुझे ये मानने पर इनकार कर रही थी कि जो मैंने देखा, क्योंकि हम गरीब थे, हमारे पास पैसे नहीं थे
और हमारी घरगोलिन जो ट्राइब थी वो हमारी सत्यता और ईमानदारी यानी ट्रस्ट और ऑनेस्टी पर जानी जाती है। इस दुनिया में हर जगह जहाँ पर भी घरगोलियन फैमिली बसती है वह हर जगह गरीब पाई जाती है। यहाँ तक कि हम सब ये भी नहीं जानते कि हमें कब उतने पैसे मिलेंगे जिससे कि हम अपने पूरे परिवार को खिला सकें या उन्हें अच्छे कपड़े पहना सकें। और हमारी जनजाति हमारी ईमानदारी के लिए जानी जाती है। लगभग 11वीं शताब्दी से यानी कि 11th सेंचुरी से यहाँ तक कि हम यह भी नहीं जानते कि हम कभी अमीर बन भी पाएंगे या नहीं। अगर हम बन भी जाते हैं तो हमें अपनी ईमानदारी पर गर्व होगा। दूसरा, हम उसके बाद हम जान पाएंगे कि हम क्या सही है कि क्या गलत है। कोई भी किसी का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा इस दुनिया में और कोई भी कभी चोरी नहीं करेगा। मैं लगातार उस घोड़े को और अपने भाई को देखे जा रहा था, लेकिन मुझे वह घोड़ा बहुत सुंदर लग रहा था। जब मैं उसके पास तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि वह इतना सुंदर है। और सबसे हैरानी वाली बात तो यह थी कि उसने मेरे कज़न मुराद के साथ भी कुछ नहीं किया। वो बाकी अदर मेंबर्स के साथ भी अच्छे से पेश आया। मुझे पता था कि मेरे भाई मुराद के पास उतने पैसे नहीं हैं कि वह घोड़ा ख़रीद सके, लेकिन इसलिए मुझे पक्का यकीन हो गया था कि उसने घोड़ा चुराया ही था। लेकिन मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। फिर आरम ने अपने भाई से पूछा कि उसने उस घोड़े को कहाँ से चुराया, लेकिन मुराद ने कोई जवाब नहीं दिया। मुराद उससे कहता है कि अगर वह सवारी करना चाहता है तो खिड़की से छलांग लगाकर बाहर आए। आरम भी सवारी के लिए मोहताज था। उसने खुद को यह समझाकर तसल्ली दी कि घुड़सवारी के लिए घोड़े की चोरी करना और किसी का पैसा चुराना दो अलग चीज़ें हैं। उन पर चोरी का आरोप तभी लगाया जा सकता है जब वे घोड़े को बेच देते, जो कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। Let me put on some clothes. I said, all right. He said, but hurry. I leaped into my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. आरम ने मुराद से कहा कि मैं जल्दी से कपड़े पहन के आता हूँ, तो मुराद ने कहा जल्दी करना। आरम अपने कपड़े पहनकर जल्दी से घोड़े पर भाई के पीछे बैठ जाता है। That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. Behind our house was the country vineyard, orchard, irrigation ditch, and country roads. In less than 3 minutes we were on Olive Avenue, and then the horse began to trot. The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. He began to roar. Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. Before him was our uncle Krozov, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley. A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It is no harm, pay no attention to it." के घर के पीछे अंगूर के बाग यानी कि ऑर्चर्ड्स, इरिगेशन डिच यानी सिंचाई की खाई और देश की सड़कें यानी कंट्री रोड्स। घोड़ा दौड़ने लगता है और मुराद जोर से गाने लगता है। परिवार में एक पागलपन फैला था। मुराद को विरासत में मिली थी, मतलब नेचुरल डिसीडेंट, क्रेजी। उनके अंकल क्रोसेप भी पागल थे। वह उग्र यानी फ्यूरियस, चिड़चिड़ा यानी
टेम्पर और अधीर यानी इरिटेटेबल, और उनके पास धैर्य की कमी थी। वे किसी को बोलने नहीं देते थे। हालांकि मुराद के पिता जोरफ वह बहुत व्यवहारिक यानी कि इनमस व्यक्ति थे। मिस्टर क्रॉसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग उनसे बात करना चाहते भी हैं या नहीं, बस वो अपनी ही सुनाते रहते थे। At last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone. Will you let me ride alone?" I asked. "That is up to the horse." My cousin said, "Get down. The horse will let me ride," I said. "We shall see," he said. "Don't forget that I have a way with a horse." अंत में मुराद आरब को नीचे उतारने के लिए कहता है। वह अकेले सवारी करना चाहता था। आरब ने उससे पूछा कि क्या वह उससे अकेले सवारी करने देगा। मुराद ने उत्तर दिया कि यह तो घोड़े पर है। उसका चचेरा भाई मुराद ने घोड़े की एड़ी में मारकर चिल्लाया, "वज़ीर भागो!" घोड़ा अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ, सूंघा और पूरी गति से दौड़ना शुरू किया। तो दोस्तों, ये तो रहा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप इस चैप्टर का पार्ट 2 भी चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को